So girls, our next article is article 32, that is find the equation of a rectangular hyperbola referred to its asymptotes as x's. So इसका क्या मतलब होता है? We have to find equation of a hyperbola referred to asymptotes as x's. So पहले हम जब hyperbola बना रहे थे, so ये hyperbola था और ऐसे इसके asymptotes बनते हैं. Yes? So अब हमने क्या करना है, asymptotes को x's लेके चलना है. So now this asymptotes will behave as x's. Now if this asymptote will behave as x's, तो हमारा जो hyperbola है वो ऐसे बन जाएगा, ऐसे. And जो यहाँ पे axis थे, x axis and y axis, this x axis and y axis will behave asymptotes for this hyperbola. Now the term rectangular rectangular term हमने यूज़ किया था जिसमें length of conjugate axis and transverse axis is equal. So equation of hyperbola is x square over a square minus y square over a square is equal to 1 होती है. So ये बन जाएगी is equal to a square. So this was the equation of rectangular hyperbola. Now when I am talking about the equation of rectangular hyperbola with asymptotes as x's. सो अब ये जो यहाँ पे असिम्प्टोट था वो एक्सिस बन गया. सो असिम्प्टोट की इक्वेशन कैसे आएगी? इफ़ दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला देन दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स. वैसे इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स हमने की थी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 0. पर जब आप ए इक्वल टू बी कर दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0. तो एक असिम्प्टोट आ गई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0. दैट इज x इज इक्वल टू y. तो जब हमने ये x इज इक्वल टू y लाइन ली, नाउ दिस लाइन इज बिहेविंग एज ट्रांसवर्स एक्सिस एंड द अदर asymptote x इज इक्वल टू माइनस वाई विल बिहेव एज कॉन्जुगेट एक्सिस. नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स इक्वेशन. सो एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे जब एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थे तो ये asymptotes थे. अब जब asymptotes को हमने एक्सिस मान लिया तो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस asymptotes बन गए. So the equation of the asymptotes are x equal to 0 and y is equal to 0. So the joint equation of asymptotes will be xy equal to 0. Now we know that equation of hyperbola differs from that of its asymptotes by a constant. So therefore equation of the rectangular hyperbola can be taken as xy is equal to some constant, where constant cannot be equal to 0 obviously, नहीं तो pair of straight lines, that is pair of asymptotes बन जाएगा. Now अब आप देखो यहाँ पे जब आपने ये सिम्प्टोट्स बनाया है तो ये जो आपके आपने ये जब हाइपरबोला ड्रॉ किया है तो आपका जो हाइपरबोला है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होते हैं, या फिर आपका जो हाइपरबोला है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों नेगेटिव होते हैं एंड एज अ रिजल्ट उनका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा. तो इसी वजह से हम के की वैल्यू सी स्क्वायर ले लेते हैं. So xy is equal to c square is the equation of the rectangular hyperbola referred to its asymptotes as x's. So this you have to remember. So this is the equation of the rectangular hyperbola with asymptotes as x's, and parametric representation on this hyperbola is given by ct comma c by d. That is, if I have to take any point on this hyperbola, I will take that point as ct comma c by d. So I hope this is clear to you. Then next topic. So यहाँ पे यही बताया है कि when hence the parametric representation. Now equation of hyperbola referred to asymptotes. तो ये complete यहाँ पे इन्होंने c square की वैल्यू निकाल के दिखाई है. So ये आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहते हो तो इसको रीडिंग दे सकते हो, अदरवाइज वी कैन स्किप दिस आर्टिकल. सो एग्जाम्पल 1, 2 और 3 हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. सो लेट अस कम टू द फोर्थ एग्जाम्पल. In this example they are saying prove that polar of any point on asymptote of hyperbola with respect to hyperbola is parallel to the asymptote only. So polar of any point on an asymptote, तो हमने asymptote के ऊपर कोई भी point लेना है तो हमने कोई भी दोनों में से कोई भी एक asymptote ले सकते हैं. Let the equation of asymptote be x by a minus y over b is equal to 0. इसी को इन्होंने ऐसे लिख दिया. Now let alpha beta be any point on this asymptote. So beta is equal to b by a into alpha.
Now polar of alpha comma beta with respect to number 1 is t equal to 0. सो ये पोलर निकाल ली. सो अब इन्होंने क्या किया, पोलर की इक्वेशन को y की टर्म इधर रख के बाकी उधर ले गए. देन बी स्क्वायर बाय बीटा से डिवाइड किया, जिससे हमें ये स्लोप मिल गई. अब देखो यहाँ पे एसिम्पटोट की स्लोप है b बाय ए. हमने ये शो करना है कि ये जो पोलर है वो इस एसिम्पटोट के पैरेलल है. तो यानी कि दोनों की स्लोप्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए. सो इसीलिए यहाँ से अल्फ़ा बीटा को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से अल्फ़ा ओवर बीटा की वैल्यू b ओवर a. तो जब आप अल्फ़ा ओवर बीटा की वैल्यू आएगी a ओवर b. सो अल्फ़ा ओवर बीटा की वैल्यू जब आप यहाँ पे a ओवर b पुट करोगे, ये ओवर b पुट की, तो ये आंसर आ गया. सो दैट मीन्स स्लोप ऑफ द पोलर इज b बाय a and slope of asymptote is also b by a. Therefore, asymptote is parallel to the polar. Next example. Prove that area of the triangle formed by any tangent to the hyperbola, this, and its asymptotes is constant. So, area of triangle formed by any tangent to the hyperbola. So, let this be any tangent to the hyperbola, and these are the asymptotes we know. So, ले लिया, let P a secant थीटा b टेंजेंट थीटा होता है, बट क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो a टेंजेंट थीटा ही आ जाएगा. सो लेट दिस बी एनी पॉइंट ऑन द hyperbola. If this is any point on the hyperbola, then equation of the tangent will become t equal to 0. ये आ जाएगी. ठीक है, यहाँ से देखो x इंटू ए secant थीटा माइनस y इंटू ए टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर. सो ये बन जाएगी. नाउ हमने इस टेंजेंट के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं एसिम्पटोट्स के साथ. एसिम्पटोट्स की जॉइंट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. दैट इज एक एसिम्पटोट है x माइनस वाई इक्वल टू 0 और दूसरी एसिम्पटोट है x प्लस वाई इक्वल टू 0 और ये टेंजेंट. सो ये तीनों मिलके एक ट्राइंगल बना रहे हैं. तो ये हमें शो करना है दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज कांस्टेंट. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए नाउ नंबर 2 and 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्लियरली ओरिजिन. नंबर 2 and 4 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकाला इन्होंने फ्रॉम नंबर 3 x इज इक्वल टू माइनस वाई. 3 और 4 का देखो, ये वाली हमारी लाइन होती है x इज इक्वल टू वाई, ये वाली लाइन होती है x इज इक्वल टू वाई, ये वाली लाइन होती है x इज इक्वल टू माइनस वाई. सो पहले इन्होंने इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है नंबर 3 और नंबर 4 का, और इसको नाम दिया है b. a इन्होंने निकाला है ये वाला पॉइंट a, और ये निकाल लिया इन्होंने फ्रॉम नंबर 2 एंड नंबर 4 को सॉल्व करके c. सो ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए आपको. सो नेक्स्ट लेट ए डेल्टा विद द एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से निकाला है. आप अभी तक जैसे करते आए हो डिटर्मिनेंट करके वैसे कर सकते हो, वो भी यही बनता है. देखो डिटर्मिनेंट में आप क्या करते हो, 0 0 1, ये दोनों वर्टिसेस 1, ये दोनों वर्टिसेस 1, ये वाला नहीं होता उसमें ऐसे. तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपके पास ये तो 0 है, ये भी 0 है, 1 इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करके एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा. तो आप निकाल के देख लेना, you will get the same answer. Now since area of triangle we are getting is equal to a square, which is constant because it is independent of theta. So यही आपको प्रूव करना था. Now इसके बाद है आपके पास exercise 7F which you have to do yourself. This is exercise 7F along with the answers. So next topic we'll discuss in the next lecture.